Hello all, welcome to the series of Current Legal Affairs by CladPoint. Now we'll see the legal updates from August 16 to August 21st. These are the batches that we have, and please contact on this number for any queries that you may get. Now the first case is Bhupendra Singh Thakur versus Umesh Sahu. This is by MP High Court, and the bench was of Justice Paliwal. Now what happened in this case? What did the court say? Basically, if we see the Code of Criminal Procedure, there is no provision which says that there can be amendment in the complaint. Now, in CPC, we do have the provision, but in CRPC, we do not have one. And this is where this judgment comes into importance. Now, what did the court say on this? It is undisputed that there is no specific provision in CRPC dealing with the amendment of the complainant. At the same time, there is no bar under CRPC against permitting a complainant to amend his complaint. So basically, the court said that firstly, there is no specific provision in CRPC to amend the complaint. However, there is no provision which restricts the amendment of a complaint as well. In wake of the discussion, it is apparent that courts below have not committed any error in passing the impugned order, as amendment sought to be made by a complainant relates to mere curing a simple infirmity which has resulted in no prejudice to accused, and same may be allowed by the court at any stage of the proceedings, as the same does not change the nature of complaint and is meant to cure the curable defects. Now, as per this judgment, जो कंप्लेंट है उसका अमेंडमेंट हो सकती है. क्यों? क्योंकि सीआरपीसी कहीं भी ये कहता नहीं है कि अमेंडमेंट हो सकता है कंप्लेंट का, लेकिन सीआरपीसी कहीं भी इस चीज़ को फॉरबिड भी नहीं करता. सीआरपीसी मना भी नहीं करता कहीं पे कि कंप्लेंट अमेंड नहीं हो सकती. तो इस केस में जो लोअर कोर्ट थे उन्होंने अलाउ कर दिया था अमेंडमेंट फॉर द कंप्लेंट. द कोर्ट हियर सेज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. हर कंप्लेंट या अमेंडमेंट नहीं हो सकता, राइट? द कोर्ट इज नॉट गिविंग अ ब्लैंकेट पार्ट टू दिस. कोर्ट ये कह रहा है कि अगर सिंपल इन्फर्मिटी को क्योर करना है तो अमेंडमेंट हो सकता है. ऐसा अमेंडमेंट विच इज नॉट प्रेजुडिशियल टू द अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट काम ना करे. एंड ऑल्सो ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है. कब? प्रोवाइडेड इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द कंप्लेंट. तो हम मान लें कि अगर कोई कंप्लेंट है जो कि पहले एक सिविल केस था और अब वो क्रिमिनल केस बन रहा है, या अगर वो क्रिमिनल कंप्लेंट की गई और अब उससे कहा जा रहा है कि नहीं, इसको चेंज करके हम ऐसा अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि सिविल प्रॉब्लम में बदल जाए, सिविल केस में टर्न हो जाए. तो ये जो है ये एक छोटा क्योरेबल डिफेक्ट नहीं है. ये किसी भी स्टेज पे नहीं हो सकता. ये प्रेजुडिस कर रहा है अक्यूज को. तो यहाँ पे अमेंडमेंट तो अलाउ किया है कंप्लेंट के लिए, लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये ध्यान में रखना होगा. नाउ कम सीवी कुट्टन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये केरला सेशन जज ने दिया है ऑर्डर. दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, लेकिन क्योंकि इट हैज़ बीन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड रीजंस, इसमें जो कोर्ट है उसके पास एंटिसिपेटरी बेल की प्ली आई थी बाय द अक्यूज्ड, जो कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगना था दैट ही हैड सेक्सुअली हैरेस्ड अ वुमन. तो कोर्ट ने उनको एंटिसिपेटरी बेल देते हुए ये बोला है कि द फोटोग्राफ्स प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द बेल एप्लीकेशन by the accused would reveal that the de facto complainant herself is exposing to dresses which are having some sexual provocative one. So section 354A will not prima facie stand against the accused. And this is exactly why this judgment is pretty much controversial, because यहाँ पे कोर्ट क्या कहना चाह रहा है कि again it's the woman's fault and it depends on how she is dressed, and likewise the person will be punished. So इस पे काफ़ी ह्यूमन क्राई हुआ है, which is why this is the case. Now comes Radheshyam Bhagwan Das Shah alias Lala Vakil versus state of Gujarat. अब इसमें again this is a lot in news and we need to correctly see that what has happened.
एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस विक्रम नाथ की। इसमें क्या हुआ था कि बिल्किस बानो, द विक्टिम इन द केस, शी वॉज गैंग रेप्ड व्हेन शी वॉज 5 months प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द 2002 गुजरात राइट्स। नाउ उस पर केस बना। केस के बाद 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। ठीक है, नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन इन पीपल कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स की होती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन कन्फ्यूजन। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज 14 ईयर्स। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। फर्स्ट थिंग, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यही है कि उस इंसान को फॉर लाइफ इम्प्रिजन किया जा रहा है। सेकेंड, आईपीसी में दिया हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब अगर कैलकुलेट करना है कहीं भी, जैसे हम लोग को रिमांड के लिए अगर कैलकुलेट करना पड़े, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर किसी को पनिशमेंट मिली है तो हम लोग उसको कितने ईयर्स मान के चलेंगे? 20 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर्स वहाँ पे भी नहीं है। सो फॉर कंप्यूटेशन, अगर कहीं भी कंप्यूट करना होगा कभी भी, तो हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स लेके चलेंगे। नाउ वेयर डज द मैटर ऑफ 14 ईयर्स कम इन टू बीइंग? 14 ईयर्स ऐसे आता है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है और उसको एज यू नो कि आप लोग पहले तो अपील के लिए जाते हैं सब, ठीक है। अपील के बाद जो भी फाइनल वर्डिक्ट होता है उसके अगेंस्ट हम लोग पार्डनिंग पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। सो वी कैन एक्चुअली गो टू द गवर्नमेंट एंड आस्क फॉर पार्डन। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है और उसका रेमिट किया जाता है सेंटेंस, तो वो तभी हो सकता है अगर एटलीस्ट 14 ईयर्स सर्व किए गए हों। 14 ईयर्स से कम की पनिशमेंट नहीं होती है अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया है तो। ज़्यादातर यही होता है कि 14 ईयर्स के बाद पीपल आस्क फॉर प्री मैच्योर रिलीज, और अगर वो 14 ईयर्स सर्व कर चुके होते हैं तो उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्वियसली। दिस इज वाई पीपल थिंक कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज 14 ईयर्स। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट 14 ईयर्स। देयर इज नो लॉ सेइंग दैट। अब हम लोग वापस केस पे आते हैं। तो यहाँ पे 11 लोग थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। अ पेटिशन फॉर प्री मैच्योर रिलीज अंडर सेक्शन 433 एंड 433A ऑफ CRPC वॉज फाइल्ड, ठीक है। अब इन लोगों ने जब हो गए, इन लोग के नंबर ऑफ ईयर्स 15 ईयर्स एंड 4 months हो गए, 14 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, तो उन लोगों ने प्ली दी कि भाई हमको प्री मैच्योर रिलीज़ कर दिया जाए। अब ये जो पेटिशन थी वो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में गई, ठीक है, और हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने उसको डिसमिस किया। क्यों? उन्होंने कहा कि जो ट्रायल था इस पूरे केस का वो चला था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो जो ऑफेंस था वो तो गुजरात में हुआ था, जो प्लेस ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस था वो गुजरात था, बट केस ट्रांसफर हुआ था टू महाराष्ट्र। तो इसीलिए जो प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को जाएगी, ठीक है, और स्टेट ऑफ गुजरात को नहीं जाएगी। ऐसा कहा किसने? गुजरात हाई कोर्ट ने, ठीक। ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमारा जो केस है, जो हमारी प्लेस ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, वो है गुजरात, लेकिन जो हमारा ट्रायल है वो हुआ है महाराष्ट्र में। तो हमें अगर प्री मैच्योर रिलीज चाहिए तो हम कौन से स्टेट में जाएं? दिस इज द क्वेश्चन। तो कोर्ट ने क्या बोला? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, बट देयर कैन नॉट बी अ कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन ऑफ 2 स्टेट गवर्नमेंट्स। 2 स्टेट गवर्नमेंट्स का जुरिसडिक्शन नहीं हो सकता, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल का होता है। Under Section 432, Clause 7 CRPC, in the instant case, once the crime was committed in the state of Gujarat, after that the trial has been concluded and judgment of conviction came to be passed. तो बाकी जो judgment और ये सब है ये महाराष्ट्र में हो गया। All further proceedings have to be considered, including remission and premature release, as the case may be, in terms of the policy which is applicable in state of Gujarat. कोर्ट ने कहा सिर्फ ट्रायल के लिए वो केस यहाँ आया था, ट्रायल के बाद के जो भी मसले हैं वो स्टेट ऑफ गुजरात में ही होंगे वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड, एंड नॉट इन द स्टेट वेयर द ट्रायल स्टैंड्स ट्रांसफर्ड एंड कंक्लूडेड फॉर एक्सेप्शनल रीजंस। तो जहाँ पे केस ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे सिर्फ ट्रायल होगा, उसके बाद उस स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको पार्डन करवाना है, अगर आपको प्री मैच्योर रिलीज कराना है, तो आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास नहीं, स्टेट ऑफ गुजरात के पास जाएंगे।
यही हुआ, वो लोग स्टेट ऑफ गुजरात के पास गए इस केस के बाद, एंड द गुजरात गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड दीज 11 कॉन्विक्ट्स. Now comes Messrs. Patel Automation Private Limited versus Rakheja Engineers Private Limited. Two judges bench, सुप्रीम कोर्ट का केस है, जस्टिस जोसेफ एंड जस्टिस रॉय. अब इसमें कोर्ट ने क्या कहा, एक एक्ट है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, इसमें जो केसेस आते हैं उनके लिए ये सेक्शन 12A में लिखा हुआ है कि पहले उन्हें क्या करना होगा, मीडिएशन. पहले मीडिएशन के लिए आप एप्लीकेशन डालें, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा. तो इसी के ऊपर कोर्ट ने बोला है, वी डिक्लेयर दैट सेक्शन 12A ऑफ द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट इज मैंडेटरी and hold that suit instituted violating the mandate of 12A must be visited with rejection of the plaint. Plaint reject कर दी जाएगी ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, अगर आपने 12A से स्टार्ट नहीं किया तो डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं आ सकते हो. दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन सो मोटो बाय द कोर्ट. यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला है अपनी पावर बढ़ाते हुए कि हम सो मोटो भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी अगर नहीं बोलेगी तो नहीं हो सकता. अगर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि 12A को फंक्शन किए बिना ही, एक्सरसाइज किए बिना ही आप कोर्ट में आ गए हैं ट्रायल के लिए, तो फिर क्या होगा, आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी अंडर 711. एग्जॉस्टिंग प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, 12A gives pre-institution mediation. Exhausting pre-institution mediation by plaintiff with all the benefits that may accrue to the parties, and more importantly, the justice delivery system as a whole, would make 12A not a mere procedural provision. ये सिर्फ एक procedure नहीं है जिसको skip कर दिया. The design and scope of the act as amended by 2018, by which 12A was inserted, would make it clear that the Parliament intended to give a mandatory flavor to it. Any other interpretation would not only be in the teeth of express language used, but more importantly result in frustration of the objective of the act and rules. कोर्ट ने ये कहा कि ऑब्जेक्टिव ही ये है इस एक्ट का कि पहले प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन हो और उसके बाद आप कोर्ट में आए, जिससे कि पार्टीज को एक तो आसानी होगी, जल्दी डिलीवरी सिस्टम जल्दी होगा, और दूसरा कोर्ट्स के ऊपर से जो बर्डन है वो भी कम होगा. So these were all the cases for this week, and I hope you people enjoyed it. Looking forward to the next week. Thank you so much and have a great day. Bye bye.